Good evening, everyone. This is Abarna here. I'm a nutritionist and a diabetic educator, working currently with HCL Healthcare, and as a in a different role, basically, quality supervisor, and doing my own practice with Diet. And I'm completely based out of Delhi only. So I'm so glad today that I got a chance to talk on the Mylo app on a very interesting topic, and which is very common also during the pregnancy cycle also, and even with a normal individual. So today the interesting topic is all about the heartburn and the acidity during pregnancy. So before jumping into what and how to stop the acidity and heartburn issue, we will try to look into the thing, what causes those things to happen. So why do we get the heartburn and the acidity, right? So now today I'll talk, and so there's a huge difference between the heartburn and the acidity issue. So heartburn and acidity are completely a different thing. No, as in the heartburn is a symptom of your acid reflux, your acidity. Okay, so acid reflux, your heartburn, and your GRD, which is also called as gastroesophageal reflux disease. So these three are different terms being interchangeably used against each other. So, and basically people know more as acidity and the heartburn, right? So I'll explain you with that, and I'll try to differentiate them also. So basically in acid reflux, so I'll talk about the acid reflux first. So in the acid reflux, what happens, so I'll explain you about the food process due to which so you'll understand it better. Okay, so during the process of digestion, so our food travels from the food pipe into the stomach through a through a food pipe called, which is also called as esophagus. Okay, so with the passage from the food pipe into the stomach, there is a valve, muscular valve called as lower esophageal sphincter. So what happens, जैसे ही खाना हमारा नीचे चले जाता है, सो दैट वाल्व क्लोजेस. सो जैसे स्टमक एरिया के पास पहुंचते ही दैट वाल्व क्लोजेस. ओके, सो दैट जो खाना पेट में चला गया है वो वापस ना आ जाए, सो दैट दैट डजंट रिफ्लेक्ट बैक. एंड वी ऑल नो दैट हमारा स्टमक इज लिटिल एसिडिक इन नेचर, and of course the nature has given in such a way and nothing happens to the stomach. The stomachs are completely protected so that the acid content in that doesn't affect our stomach. But the esophageal, the food pipe, is not much well protected. So what happens once hamara khana it's like reached and the muscle valve is tightened up, so खाना वापस आने का चांसेस नहीं होता. सो द प्रोसेस गोज ऑन, हमारा डाइजेशन प्रोसेस वगैरह चलता रहता है. बट in case of heartburn or the acid reflux, what happens, the muscular valve which I said, the lower esophageal sphincter, वो actually क्या हो जाता है, थोड़ा tighten होने की जगह पे it's like little relaxed. So once it is relaxed, what happens, the food which has entered into your stomach, instead of going through other process, it tries to reflects back, like it comes back into the esophagus like the food pipe. तो वापस वो जब वो फूड पाइप में आना शुरू हो जाता है, द फूड पाइप विच इज नियर योर लोअर चेस्ट, राइट, सो वहाँ पर वी स्टार्ट टू गेट दैट acid reflux. So basically acid reflux होने लग गया, तो you will start that getting that symptom of your heartburn. So basically heartburn ये is a symptom of your acid reflux. So not exactly acid reflux. Okay. So now the third one which I was talking about is your GERD, which is also called as gastroesophageal reflux disease. So what happens in this case is like during this process of digestion, जब हमारे ये GRD it occurs more than twice a week, और जब inflammation food pipe में होने लग जाता है, that is a thing of GRD. So that's a concern about GRD. So acid, the heartburn has nothing to do with it's not a severe thing basically, and GRD it's a chronic disorder. Okay, and वही acid reflux को देखा जाए तो वो हमारा
इट्स नॉट कम्प्लीटली, इट्स लाइक अ माइल्ड टू सीरियस वन, ठीक है. तो until unless वो थोड़ा बहुत we have like prevented it, so nothing to worry about that. It's very common also, and it's like which can be controlled also. Okay, so now we talked about this during a general life. So what happens during the pregnancy cycle? So what happens during pregnancy, because women undergo a lot of hormonal changes, so due to that, so that's a major concern. जब प्रेगनेंसी के टाइम पर हार्मोनल चेंजेस वैसे ही इतना हो रहा होता है कि खाना वगैरह थोड़ा ज़्यादा पच नहीं पाता है ना. जब डाइजेशन प्रोसेस वगैरह थोड़ा स्लो है, and that I said that lower esophageal sphincter that also relaxes much, so actually वो relaxation उसका थोड़ा frequent होने लग जाता है. So जब वो frequency ज़्यादा होने लग जाए तो you have a frequency of having heartburn. जब heartburn ज़्यादा होने के chances ज़्यादा होता है during pregnancy, एंड स्पेशली ड्यूरिंग सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर, क्योंकि हमारा फीटस का डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा है. सो ड्यूरिंग दैट ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि हमारा बॉडी abdomen इट्स लाइक एक्सपैंड्स अ लिटिल, सो अंडर प्रेशर, so हमारा stomach comes in under pressure, so due to that also you will get a very frequent heartburn, acidity issues. Okay, so it's like very common occurrence during the pregnancy cycle. It's nothing to be worried about, but yes, if the frequency is like quite too much in a week and it's like completely disturbing you, बिल्कुल आपको नींद नहीं आ पा रहा है, एंड यू आर नॉट ट्राइंग एबल टू स्लीप ऑल्सो, खाना नहीं खा पा रहे हो आप, जलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन डेफिनेटली इट्स sign of concern, then you should reach back to your doctor. Okay, so that they can give you any kind of medication or any they can suggest you better. So this is the difference between a heartburn. So heartburn is basically a symptom of your acid reflux and GRD. Okay, so now I'll try to speak around the question answer given by our viewers. So I'll try to give one solutions to everybody. Okay, and I'll try to wind up every questions given here. Okay, so I have a question from Avnish and Farhan. So basically, both are similar questions given. So अवनीश ने पूछा है, मुझे पेट में गैस ज़्यादा बन रहा है और मुझे प्रेगनेंसी 7th मंथ ऐसा क्यों हो रहा है. एंड फरहान का भी क्वेश्चन है, मुझे गैस प्रॉब्लम है, बर्निंग सेंसेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, राइट. सो बेसिकली अवनीश एंड फरहान, क्योंकि गैस एक बहुत कॉमन इशू है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा होता है, वैसे भी इट्स लाइक क्वाइट कॉमन इन नेचर. ओके, सो क्या होता है ड्यूरिंग आवर बॉडी गोज थ्रू, जैसे मैंने बताया हमारा बॉडी बहुत हार्मोनल चेंजेस जाता है, राइट. सो ड्यूरिंग दैट what happens, a hormone called as progesterone, वो लाइक इट इज़ रिलीज्ड, ठीक है. जब वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होना शुरू हो जाता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी की जो मसल्स होते हैं उसको थोड़ा रिलैक्स करता है. सो रिलैक्सेशन इज़ क्वाइट हाई. सो जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि जब रिलैक्सेशन, हमारे लोअर स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब खाना कैन रिफ्लेक्ट बैक, द फूड विच हैज़ एंटर्ड द स्टमक कैन रिफ्लेक्ट बैक. So that is the reason why you gain, why you start getting that acidity issue, heartburn issue, right. So अब क्या हो रहा है, जैसे ही मसल रिलैक्सेशन ज़्यादा हो रहा है, so हमारा जो इंटेस्टाइन का जो मसल है वहाँ पर भी हमारा रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाता है. जब मसल का जो इंटेस्टाइन का मसल रिलैक्स हो रहा है, दैट मीन्स हमारा डाइजेशन स्लो हो रहा है. सो डाइजेशन स्लो हो रहा है मतलब हमें ये गैस बनने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है ना, क्योंकि खाना ढंग से पच नहीं रहा है. सो इट्स लाइक इन द स्टमक ओनली फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड you'll start getting that so gas formation is quite high during this kind of thing. जब डाइजेशन स्लो हो जाता है तो आपने ये भी देखा होगा, जब खाना नहीं पच रहा तो आपको बर्पिंग शुरू हो जाता है ना. सो ये सारा एक तरीके से इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, एंड इट्स वेरी कॉमन ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर गैस इश्यू हो रहा है तो ये इस रीज़न से हो रहा है, डाइजेशन स्लो है. So how we can get rid of this, like how we can actually not get rid of, how we can prevent it, ठीक है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं. So basically I would suggest Avnish and Farhan कि आप
थोड़ा सा लाइक स्लो डाइजेशन है जैसे, तो ट्राई, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ट्राई करो कि आप अच्छे से पानी पीजो, ठीक है। थोड़ा वाटर इनटेक, क्योंकि अभी विंटर टाइम भी हो गया है, प्लस प्रेगनेंसी में मोस्टली वी डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एंड पानी वगैरह चीज़ें जो एकदम अनफ्लेवर्ड है तो उसमें टेस्ट भी नहीं आता, सो इट्स लाइक समथिंग नॉट रिलायबल ऑल्सो, राइट। सो वॉट यू कैन डू, you can like add some kind of flavor to your drink, ठीक है। so not the artificial one but हाँ natural one, so वो आपने ऐड कर लिया, उसमें थोड़ा सा जिंजर का रस डाल दिया आपने, जस्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ ड्रिंक, फ्लेवर मिलने के लिए आपको, ठीक है। एंड यू कैन ऐड जीरा वाटर ऑल्सो, यू कैन ऐड सम जीरा, और तो ये भी बहुत अच्छा है इस टाइम पे एसिडिटी और गैस इश्यूज से बचने के लिए। जीरा इज़ वेरी गुड, ओके, फ्लैटुलेंस वगैरह के लिए। एंड ट्राई टू मूव अराउंड योर प्लेस, सो बहुत देर तक मत बैठना एक जगह पे। ट्राई कि आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत फ्रीक्वेंटली जा रहे हो, उठ रहे हो, थोड़ा काम कर रहे हो, ऐसा टाइप, सो थोड़ा लिथार्जिक फील ज़रूर होगा, बट इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर ट्राइंग टू मूव अराउंड, ओके। एंड the third thing would be like एनजाइटी और स्ट्रेस जो है वो भी एक बड़ा रीज़न हो जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट है तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, राइट। यू विल बी लाइक मोर एंशियस एंड स्ट्रेस्ड आउट कि कैसे होगा, क्या होगा, बट नथिंग टू वरी अबाउट। जब एनजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है, सो यू द वॉल्यूम ऑफ एयर गोज इन टू योर बॉडी, सो वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है गैस इशू होने का, ठीक है। सो ट्राई नॉट टू डू दैट, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ योगा, मेडिटेशन, सो यू आर लाइक बिजी अराउंड, ओके। एंड द फोर्थ वुड बी योर फाइबर इनटेक, क्योंकि फाइबर इनटेक कम होगा देन डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन का भी इशू होने के चांसेस हो सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है देन डेफिनेटली ये गैस का भी इशू हो सकता है ना। सो ट्राई टू नॉट टू मच, यू आर नॉट ईटिंग लेस ऑल्सो एंड नॉट ईटिंग टू मच ऑल्सो एट अ गो। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप हर 2-3 घंटे में यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ स्मॉल मील्स, वेरी फ्रीक्वेंट मील्स, ओके। आई होप अवनीश एंड फरहान आपको क्वेश्चन का आंसर मिला। And okay, so I have another question from Sabiha. So Sabiha ने पूछा है, मुझे 2 महीने से रोज़ शी इज़ हैविंग बनाना रोटी, रात को बनाना रोटी खा रही हैं, ऑयल और मसाले बिल्कुल उन्होंने रोक दिया है, और फिर भी उनको लग रहा है कि उनको बर्पिंग वगैरह हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, राइट। सो सबिहा, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू नॉट टू हैव लाइक बनाना एंड रोटी रात के टाइम पे। इट्स गुड यू हैव योर प्रॉपर मील, ठीक है। खाना आप इस टाइम पे यू शुड डेफिनेटली हैव अ गुड फूड, क्योंकि बेबी का ग्रोथ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, राइट। सो ट्राई टू हैव एक रोटी, 2 रोटी, सब्जी, सलाद, ऐसा टाइप आपने अच्छे से एक फुल फ्लेज्ड डिनर रखा है। एंड ट्राई टू अवॉइड योर डिनर 3 hours बिफोर योर बेड टाइम, ठीक है। खाना आप जितनी जल्दी, लाइक आप अगर 11 बजे सो रहे हो तो 7-8 बजे तक अपना डिनर ख़त्म कर लो, जितना आपका बेड टाइम के आसपास होगा, क्योंकि डाइजेशन ऑलरेडी स्लो है। सो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट गेटिंग दोज एसिड रिफ्लेक्स, है ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए ट्राई करो कि आपने खाना जल्दी खा लिया है, ठीक है। सो जल्दी एज इन 3 hours बिफोर योर बेड टाइम वुड बी अ गुड सजेस्टेड टाइम टू हैव योर डिनर, ओके। एंड हैव अ गुड मील। आपको रोज़ बनाना और रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है जस्ट क्योंकि आपका एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है। ट्राई टू हैव योर मील प्रॉपरली, हर 2 घंटे में अपना खाना खाओ, ठीक है, प्रॉपर खाना खाओ, च्यू योर फूड। सो बेसिकली जब खाना अच्छे से च्यू करते हैं, सलाइवा सेक्रेशन होता है, सलाइवा सेक्रेशन विल डेफिनेटली हेल्प इन गिविंग दैट रिलैक्सेशन टू द एसिडिटी इशू, ठीक है। तो ट्राई करो कि आप खाना जब खाते हो उसको अच्छे से चबाओ, गिव टाइम टू योर फूड, ईट प्रॉपरली, ओके। सो हम च्यूइंग वाला इशू तो बहुत ज़्यादा है, नोबडी च्यू, कोई खाने को चबाने के लिए राज़ी नहीं होता है ना। तो वो वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए, खाने को अच्छे से चबाओ, जितना सलाइवा सेक्रेशन होगा उतना अच्छा है आपकी डाइजेशन के लिए भी। स्लो डाइजेशन ऑलरेडी है, सो इट इज़ गुड दैट यू वुड च्यू योर फूड, ठीक है सब भैया। सो नेक्स्ट टाइम
आप ट्राई करो कि आप अच्छे से खाना खाओ। मसाला ऑयली तो बिल्कुल लाइक ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि डाइजेशन इशू हो जाएगा। बट येस, यू आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फूड, ओके, डोंट starve yourself to your banana and roti, okay. And so I have another question from Hemalata. So हेमलता जी ने पूछा है, मैम मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और अचानक बीपी बढ़ने लग गया है, कोई उपयोग बताएं। ठीक है, सो मोनिका जी, हेमलता जी, जैसा आपने पूछा है आपको बीपी बढ़ रहा है, सो एक्चुअली इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी का रीजंस ये हो सकता है कि आप लाइक ओवरवेट या ओबीज कंडीशन में हैं। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो हम लोग 10 to 12 kgs गेन करते हैं, राइट। सो इवन विद दैट BMI, अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, लाइक यू आर मोर ओबीज, सो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको यू आर लाइक बीपी इश्यूज हो रहा है, या एक जेनेटिक रीज़न हो सकता है कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री हो प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपरटेंशन होने का। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। एंड सेकेंड इज़ योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल में ही गड़बड़ है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको इस टाइम पे बीपी वगैरह बढ़ रहा हो, है ना। तो ट्राई, और इनएक्टिविटी, अगर आप बहुत देर तक इनएक्टिव हो अपने लाइक इन अ होल डे, यू आर नॉट वेरी मच एक्टिव, आप खाना खा रहे हैं एंड देन यू आर ट्राइंग टू स्लीप एंड लाइक दैट, सो ट्राई नॉट टू डू दैट थिंग। ट्राई टू रिलैक्स योर मच, थोड़ा एक्टिविटी थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आपको खाने में नमक कम करना है, ठीक है, कि खाने में नमक कम करना, इट्स नॉट दैट गुड ऑल्सो प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि फिटल ग्रोथ हो रहा होता है ना। सो उस टाइम पे नमक इज़ नॉट दी सॉल्यूशन जस्ट कि उसको रोकने से आपका बीपी ठीक हो जाएगा, नहीं। ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ मच, मेडिटेट करो, योगा करो, ठीक है। नॉर्मल वॉक्स में जाओ, फ्रीक्वेंट वॉक रखो। आप खाना खाया आपने, उसके थोड़ी देर बाद यू ट्राइंग टू गो फॉर अ वॉक, 10-15 मिनट आप वॉक करके आए एंड यू आर रिलैक्सिंग योर सेल्फ, ठीक है। एंड खाना हमेशा 2-3 घंटे पहले, सोने से पहले रखो। फ्रीक्वेंट मील रखा आपने, एवरी 2 to 3 आवर्स आपने खाना खाया अच्छे से। एंड चूइंग योर फूड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एंड यू हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक ट्राई टू हैव गुड, एंड ट्राई टू अवॉइड द सिट्रस फ्रूट्स ऑल्सो, क्योंकि एसिडिक क्या इशू होने का चांसेस है, ठीक है। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर। तो पानी अच्छे से पीना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वगैरह, ये इट्स लाइक वेरी कॉमन ऑल्सो। एंड ये क्वेश्चन भी हमारे पूछा हुआ है किसी ने कि यू आर नॉट एबल टू पी ऑल्सो, सो ट्राई लाइक हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। एंड सो आई हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मोनिका एंड श्रीदेवी। सो मुझे पूरे दिन में जलन होती रहती है राइट साइड सोते टाइम। सो इन्होंने पूछा है राइट साइड सोते हैं और इनको पूरे टाइम पे इट्स लाइक बर्निंग, ओके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मोनिका एंड श्रीदेवी, ट्राई नॉट टू स्लीप ऑन योर राइट साइड, ओके। सो ट्राई टू स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, जो हमारा ईजोफेगस, इट्स लाइक ऑन अ हायर पोजिशन देन योर स्टमक, आपके स्टमक से थोड़ा हायर पोजिशन में होता है। सो जैसे ही वो हायर पोजीशन में आ जाएगा, एसिड रिफ्लेक्स होने के चांसेस होता है। सो ट्राई नॉट टू स्लीप ऑन योर राइट साइड बट स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड, ठीक है। एंड ट्राई टू कीप अ पिलो, अपने नेक के नीचे यू आर कीपिंग अ पिलो, ठीक है, अपर बॉडी के हिसाब से, सो दैट इट्स लाइक लिटिल अपलिफ्टेड, ओके। सो डूइंग दिस वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट, सो ट्राई टू स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड। So I have another question from Varsha, and she has given a question like 2 दिन से मैं small frequent meal खा रही हूँ, but still she has that sensation of vomiting. So Varsha, vomiting sensation is very common during pregnancy, क्योंकि already हमारा body इतने hormonal changes जा रहा होता है, so that nausea things comes into play and nothing to worry about that, ठीक है। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस, अगर आप फ्रीक्वेंट मील खा रहे हो स्मॉल अमाउंट में, सो ट्राई टू हैव दैट
इन अ वेरी फ्रीक्वेंसी, लाइक 2 to 3 hours के बीच में खा रहे हो, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन से खाने की वजह से यू गेटिंग दैट सेंसेशन. कभी स्मेल या टेस्ट से भी होने लग जाता है. अगर वो आपको ऐसा हो रहा है तो ट्राई नॉट टू ईट दैट. ठीक है, सो ट्राई टू अवॉइड दैट. एंड पानी का इंटेक थोड़ा अच्छा रखो. एंड खाना यू आर हैविंग इट प्रॉपरली, देन ट्राई एकदम ऑयली चीज़ें, एकदम स्पाइसी चीज़ें नहीं. और कभी कभी यू हैव अ क्रेविंग फॉर समथिंग, देन डेफिनेटली ट्राई नॉट टू हैव सो मच ऑयली फूड. सो ज़रूरी नहीं है ऑयली फूड से ही वो टेस्टी आएगा, बिना ऑयल के भी आपका खाना बहुत टेस्टी बन सकता है. सो ट्राई डूइंग दैट. एंड स्वीट क्रेविंग, चॉकलेट वगैरह चीज़ें थोड़ा ट्राई करो अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उनसे भी आपको कैफीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा होने लग जाता है ना. So frequent meals should be inculcated in your daily lifestyle. एंड और ये देखो कि आपको कौन से खाने से स्पेशली हो रहा है. ठीक है. एंड सो आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस एक्चुअली फ्रॉम प्रियंका, मनाली, संगीता. सो इट्स लाइक ऑल कॉमन कि हमें क्यों हो रहा है ये, किस लिए हो रहा है जलन, राइट. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लाइक आई सेड, मसल रिलैक्सेशन थोड़ा बॉडी में ज़्यादा है, राइट. मसल रिलैक्सेशन ज़्यादा है तो मतलब खाने का डाइजेशन प्रोसेस भी थोड़ा स्लो है. डाइजेशन प्रोसेस स्लो है, देन डेफिनेटली गैस इशू होने लग जाता है, हार्टबर्न होने का इशू हो रहा है, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, राइट. सो द फूड इज कमिंग बैक टू योर चेस्ट. सो ट्राई, what I would suggest as a nutritionist to you all would be, try to wear a comfortable clothes. सो अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना आप कंफर्टेबली कपड़े पहन सकते हो उतना अच्छा है. ट्राई टू वियर दैट. बहुत टाइट कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स चिल्ड ऐसे टाइप का. ठीक है. अवॉइड ईटिंग लाइक फ्यू आवर्स बिफोर योर बेड. लाइक आई सेड, खाना खाना अपना 3 घंटे से पहले ही खा लिया. अगर आप 11 बजे तक सो रहे हो, सो ट्राई टू वाइंड अप बिफोर 3 hours, सो दैट देर इज़ अ गुड गैप. डाइजेशन अच्छे से हो गया है, यू कैन स्लीप वेल ऑल्सो. ओके. And during your sleep, try to keep a pillow in your upper body, under your upper body, and sleep. And the third thing would be like, eat slowly and chew. So every bite, जितने बाइट ले रहे हो आप उतने बाइट को अच्छे से च्यू करो, क्योंकि डाइजेशन स्लो है. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, डाइजेशन स्लो है. च्यू योर फूड, गिव टाइम टू योर फूड. सो ये मत सोचो स्टमक में जगह डाइजेशन हो जाएगा, नहीं, क्योंकि स्टमक में ऑलरेडी अंडर, इट्स लाइक प्रेशर, क्योंकि बेबी का ग्रोथ हो रहा है. इट्स लाइक अंडर प्रेशर. इट्स वेरी गुड दैट यू चू योर फूड इन योर माउथ इटसेल्फ. यू गिविंग टाइम टू योर फूड. अच्छे से खाओ, गेट दैट टेस्ट, एन्जॉय योर फूड. सो वेरी गुड थिंग वुड बी एन्जॉइंग योर फूड. सो जब आप एन्जॉय करने लगोगे, यू विल बी चूइंग मोर, राइट. सो इट्स ऑलवेज गुड इन दैट काइंड. एंड ट्राई टू स्टे अपराइट. जब खाना खा लेते हैं थोड़ी देर स्ट्रेट सिट लाइक दिस, okay, for at least an hour, so that the food, like it's like digested. खाते ही सोना नहीं है आपको, कभी भी खाते ही मत सोएगा. Try to sit upright, and then for an hour try to relax yourself. Don't think too much. इतना स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर वालों को दो, स्ट्रेस लेंगे. ठीक है. So try not to take much stress. एनजाइटी होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, योगा करो, मेडिटेट करो. और जब भी लग रहा है आपको कि यू आर लाइक worry too much, try to listen to a song जो आपको अच्छा लगे, वो गाना सुन लो आप. Try to read a book, or try doing some kind of activity which distracts completely you from those kind of scenario. Okay. And post meal, खाना खाने के बाद try to go for a 10-15 minutes walk every, like 15-20 मिनट बाद खाने के थोड़ी देर वॉक करके आओ, क्योंकि थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है. And try go around in your lawn itself, go for a walk, that would be much recommended for you. And eat slowly, like I said, and frequent meal hona chahiye. Every 2 to 3 hours you're having some kind of fruit, and increase your intake of fruits and vegetable. अच्छे से खा सकते हो आप उनको. ठीक है. जितना fruits and vegetable खा सकते हो. And chew your food. Like I said, chew your food, enjoy your food, and get that taste from the food. Okay. So as much as you chew, the saliva secretion would be much more. Acidity का issue बहुत कम हो जाएगा. ठीक है. ये थोड़े टिप्स हैं जो you should always follow.
And अगर right side में सो रहे हो, try to sleep on the left side. And a quick remedy would be like, you can have jeera water. That is very good for acidity and all. So try having that. अगर आपको लग रहा है खाना खाने के बाद हाफ टी स्पून जीरा खा सकते हो for a better digestion. Okay. And I hope I try to answer all of the questions around. It was like all interrelated. So it was very nice talking to you, and trying to give a question answer session here. And yeah, so thank you so much, Mylo. And if you have any other query, and if I missed out any kind of questions, please you can drop your question answer to the Mylo app. I'll definitely try to reach you back. Until then, thank you so much from Aparna.